আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বসবাস করি। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিককে কিছু কিছু মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। অনেক মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটি হলো স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার। প্রয়োজনে আপনি নিজের মতামত নির্ভয়ে প্রকাশ করে সমাজ গঠনের কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগদান দিতে পারেন। আমাদের দেশের সরকার এক বা একাধিক পার্টি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। যেই পার্টি সরকারে থাকুক না কেন, ভালো মন্দ কাজের সমাবেশ থাকবেই। পার্টি সবসময় চাইবে ভালো ভালো সমাজসেবামূলক জনকল্যাণ কাজ করে পাবলিকের সেবা করা। কিন্তু মাঝে মাঝে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে জনবিরোধী কাজকর্মে সরকার জড়িয়ে পড়ে। এটা যখন অতিরিক্ত মাত্রায় হয়ে থাকে, তখন দেশের স্বার্থে বেশ কিছু মানুষ প্রতিবাদ করে থাকে বিভিন্ন উপায়ে। চ্যানেলগুলো সরকারের সমালোচনা করতে থাকে। এমনকি এখনকার দিনে সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন চ্যানেল তারা গঠনমূলক সমালোচনায় মেতে যায়। এর ফলে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। তাদের বিভিন্ন রকম জনবিরোধী কাজকর্ম বন্ধ করার জন্যে সরকারের থাকা কিছু ভদ্রবেশী শয়তান লোক তাদের নিজের স্বার্থে বিভিন্ন বেআইনি কাজকর্ম বন্ধ না করে দিনের পর দিন চালিয়ে যায়। এর ফলে দেশের মধ্যে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। আইনসম্মত প্রতিবাদকে চাপা দেওয়ার জন্যে সরকার টিভি চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়াতে যে চ্যানেলগুলো গঠনমূলক প্রতিবাদ চালায় সেগুলো বেআইনিভাবে বন্ধ করার চেষ্টা করে। তা না হলে যারাই প্রতিবাদ করে তাদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভিত্তিহীন বদনাম করার চেষ্টা করে। আজকে আমি দুটি চ্যানেলের কথা বলবো যারা সরকারের কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করে থাকে সমাজের স্বার্থে। এই রকম একটা হলো জি24 ঘণ্টা। এই চ্যানেলে রাত 9টার দিকে যা বলবো সত্যি বলবো এই অনুষ্ঠানে সরকারের বিভিন্ন রকম কাজের সমালোচনা করে থাকে। এই রকম আরও অনেক চ্যানেল আছে যারা সরকারের কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করে থাকে। এটা যে করে থাকে সম্পূর্ণ সমাজের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, তার ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়। আজকে একটি হিন্দিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় নেহা সিং রাঠোর নামে এক ভদ্রমহিলা রাজ্য সরকারের ও কেন্দ্র সরকারের বেআইনি কাজকর্মের ব্যাপক সমালোচনা করে থাকে। তার কাজকর্মকে বন্ধ করার জন্যে বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চালানো হচ্ছে। শুনুন তিনি নিজেই কি বলছেন। सबको बताना है कि मैं कितनी ज्यादा चरित्रहीन हूं। पूरी क्रिएटिविटी के साथ कीचड़ उछाला जा रहा है। एडिटेड तस्वीरों का पूरा एल्बम घूम रहा है और एडिटेड फोन कॉल से लेकर अफवाहों तक का बाजार खूब गर्म है। कुल मिलाकर सबको मजा आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सब काम देशभक्ति के नाम पर हो रहा है और मुझे गालियां देकर लोग झटपट देशभक्त बन जा रहे हैं। अगर मैं इस प्रोसेस को न समझ रही होती तो मैं जरूर परेशान हो जाती, कमजोर पड़ जाती, टूट जाती। लेकिन इन फर्जी देशभक्तों के लिए बुरी खबर यह है कि मैं खूब समझ रही हूं कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं इस सरकार से सवाल पूछ रही हूं, लेकिन सरकार के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, तो बदले में मुझे गालियां दिलवाई जा रही हैं। सवाल पूछने वाली लड़कियों को रोकने का सबसे आसान तरीका यही तो है, उनके चरित्र पर सवाल उठा दो, बेचारी डर जाएंगी। न डरे तो वैश्या बोल दो, उनके घर वाले डर जाएंगे और उन्हें चुप करा देंगे।
फिर भी ना माने तो देशद्रोही और गद्दार बोल दो, एफआईआर दर्ज करा दो, जेल का डर दिखा दो। ये लोग इतने कायर हैं कि सवाल पूछने वाली एक लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पूरी आईटी सेल की फौज लगा रखी है, मेरा फोन नंबर तक वायरल कर दिया गया है, डेली सैकड़ों फोन कॉल्स आ रहे हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए कि मेरा हौसला टूट जाए। मुझे गालियां देने वाले लोग कोई और लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला देकर मार दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने ब्रूनो को सच बोलने के लिए जिंदा जला दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने मीराबाई राठौर को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे मूर्ख और धूर्त हर युग हर जमाने में हुए हैं, और मैं इस परिदृश्य को बहुत कायदे से समझ रही हूं। इस जमाने के मूर्ख और धूर्त मुझे चाहे जितना अपमानित करें, प्रताड़ित करें, मैं हारने वाली नहीं हूं। वो मेरा जीवन ले सकते हैं, लेकिन मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। सुकरात अगर जहर का प्याला न पीता तो मर चुका होता, पर सुकरात आज भी इसीलिए जिंदा है क्योंकि उसने झूठ बोलने के बदले जहर पीना स्वीकार किया। मैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही हूं, आम जनता के उन मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हूं जिन्हें सरकार में बैठे लोगों ने पीछे धकेल दिया है। इस देश की जनता को रोजगार चाहिए सर, महंगाई से छुटकारा चाहिए, अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल चाहिए, अस्पतालों में डॉक्टर और स्कूलों में शिक्षक चाहिए। आम जनता को हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं चाहिए। लेकिन इस सरकार ने आम जनता को सिवाय झगड़ों के और कुछ नहीं दिया है। सरकार इस देश को कमजोर कर रही है, और मैं ये होने नहीं दूंगी। ये देश इस सरकार की जागीर नहीं है और प्रधानमंत्री देश के मालिक नहीं हैं। मैं ये बात 1000 बार बोलूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे जहर का प्याला ही क्यों न पीना पड़े। इस देश के हाकिम को पता होना चाहिए कि मैं सिकंदर लोदी से नहीं डरती हूं। बाकी इस देश के महिला आयोग से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। भाजपा के नेता महिलाओं पर जिस मुखरता से बयान दे रहे हैं, उसे देखकर मैं आपकी हालत का अंदाजा लगा पा रही हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्ते जीत जी।